reduced echelon form. So what is the relation in rank and row reduced echelon form matrix? Yes, sir. What is number the of relation? Rank of A yes, is equal to number of non-zero non-zero rows of row reduced echelon form. Row reduced echelon form. So this is one of the method by which you can find rank also, है ना? As I told you, rank Yes, is important for solving the system. So we have different methods. So one method is you have to find that number of Li rows, or if you can reduce in reduced echelon form, so only you have to count the number of non-zero rows, है ना? So no need to count here Li rows, only just non-zero rows. Then we were doing some relation for system of linear equations, है ना? yes, sir. Homogeneous or non-homogeneous. System of linear equations we also started yesterday. So here you saw there are two type of equations, non-homogeneous and homogeneous. If you have some system of equation, means you have some n number of equations. As I told you that in real life problems there may be so many variables. So this system equation there people solve for finding the solution. So there they use different methods. So by the matrix method we can also solve this matrix problem, this is system equation problem. So there we use these concepts. So if you have like this B1 and so on in this way, I was taking m linear equations with n unknowns, with n unknowns. Our m may be less than n, greater than n, equal to n, whatever is there. Normally we consider that if you have m less than n, number of equations are less than number of unknowns. am1 x1 and so on. A mn xn is equal to b. So if all bi is 0, then we say it is homogeneous. Yes, sir. Otherwise Non-homogeneous. non-homogeneous. NH. Then there are different relations. One thing is rank. In terms of rank, if you have a coefficient matrix, a coefficient matrix, you have all the Yes, sir. coefficients. Coefficient. Another one is augmented matrix, where you have all aij's and also With b1 to bn. B1. This I can say bj. So you have constant. bj, suppose, है ना? So j is 1 to n. कितने होते हैं? m होगा, सॉरी, है ना? इतने अननोन्स हैं, b1 b2, और जितने इक्वेशन है उतने b होंगे, और ये आपके कॉलम अननोन्स. तो b, this is called augmented matrix. This is called coefficient matrix, where you have only coefficients, and when you have right hand side constants, it is called augmented matrix. So by a relation you can find whether system is inconsistent or not. So what was the result? If rank of A is not equal to rank of A B, means augmented matrix C rank should not, if it is not equal to rank of A, then system is inconsistent. Inconsistent means no solution. No solution, sir. System का solution exist नहीं करता. Then where there are different cases कि अगर rank equal to rank A B है, then system has a solution. Unique solution कब हो जाएगा? If they have same rank which is equal to number of unknowns, है ना? Yes, sir. If rank of A is equal to rank of Augmented matrix. then it has a solution. Yes. So I was writing different cases, है ना? 3-4 केस लिख दिए थे. एक केस और था, डी केस था, आपका एक थ्योरम चल रही थी, उसमें थ्योरम थी
तो केस थे कि इफ r इज इक्वल टू m, m आपके नंबर ऑफ इक्वेशंस है ना, देन nh नॉन होमोजेनियस सिस्टम है ना, always has a solution, always has a solution whatever be। अगर r रैंक आपकी m के इक्वल है और अगर r इक्वल टू m इक्वल टू n है, रैंक m n ये आपस में सब इक्वल, यानी कि आपकी स्क्वायर में m n इक्वल का मतलब क्या हुआ, यू हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स नाउ, है ना, और रैंक भी इसकी इक्वल आ गई m n के, देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, हैज अ यूनिक solution, and H also has a unique solution which is trivial. H also has a unique trivial solution. Trivial का मतलब क्या था, 0 0, है ना। Yes, sir. मैंने बताया था आपको, सपोज x plus y is equal to 0, 2x plus 3y is equal to 0. It is a homogeneous system of equations. You have two equations. यहाँ पर अगर मैं मैट्रिक्स लूँ, यहाँ पर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, 1 1 2 3। What is the rank of this? यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट देखें, इसका अगर डिटर्मिनेंट आप निकालें, 3 1 3 minus 2 1 नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो आ जाता है तो वही रैंक हो जाती है, तो रैंक क्या है इसकी, 2 है ना। सो हियर दिस इज द केस, r इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा, यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखो इसको जरा सॉल्व करो, क्या आएगा जब आप सॉल्व करेंगे, तो x भी 0 आएगा, 2x plus 2y। दोनों 0 आएंगे, Yes, sir. Y equal to 0. Yes, sir. है ना। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि इफ यू हैव दिस केस, देन दिस होमोजेनियस सिस्टम हैज अ यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर यहाँ पर 0 0 की जगह मान लो 1 2 कुछ होता, सपोज नॉन जीरो होती है ना, सपोज ये होता आपके पास 1, ये होता 3, अब आप क्या करेंगे, अब भी यूनिक सॉल्यूशन आएगा, लेकिन ट्रिवियल 0 नहीं होगा। देखिए जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, x इज हाउ मच, 2 से मल्टीप्लाई किया, x कैंसिल कर दिया, तो 3y माइनस 2y, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू हाउ मच, 0, है ना। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। Yes, sir. तो लेकिन यूनिक है ना, सॉल्यूशन इज यूनिक। Yes, दिस sir. इज द केस कि these आर इक्वल और नॉन होमोजीनियस है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और होमोजीनियस है तो यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। एक केस और था, इसमें ए बी सी, एक्स ए ऊपर था वो हमने लिखा था, डी केस रह गया था, इट वाज लास्ट केस डी। एक्चुअली ए केस वाज डन, बी दिस वाज बी, दिस इज सी ना। ए आपका यही था कि NH हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज R, तो सॉल्यूशन है। D was if R is equal to M but less than N, यानी कि रैंक जो है वो इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस है, लेकिन n से कम है। ठीक है, इस केस में Yes, क्या होगा, B वॉट एवर द B कुछ भी हो चाहे उसमें, तो इस केस में योर नॉन होमोजीनियस एज वेल एज होमोजीनियस, they have infinite number of solutions। तो इक्वेशन सर ज्यादा है, वेरिएबल्स कम है। हाँ, है ना। और अच्छा। जो आपके इनफैक्ट n माइनस आर अननोन्स होंगे वो फ्री वेरिएबल्स होंगे। जैसे एक में ले लूं, मान लीजिए आपके पास फॉर एग्जांपल, सपोज यू हैव 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। अभी होमोजीनियस ले लेते हैं अगर मान लीजिए, तो हियर यू हैव m इज इक्वल टू 2, n इज 3, है ना। Yes, अब इसकी अगर आप रैंक निकालेंगे, रैंक देखिए 2 3 4 1 1 2, इसकी रैंक निकालो जरा। इसको आप क्या करो, चेंज कर लो इक्लोन फॉर्म में, सपोज इट इज योर ए, है ना। तो इक्लोन फॉर्म में क्या करेंगे आप, पहले इसे शिफ्ट कर दो, 1 2 2 3 4। अब क्या करें, ये 0 बनाते हैं नीचे का, तो ट्वाइस R2 में R2 माइनस 2 ऐसा आ रहा R1, तो फर्स्ट टू एज इट इज। अब 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 1।
ठीक है, ये हो गया। अब इक्वल, अभी ये तो हो गया, ये 1 है, लेकिन ये इट शुड बी द ओनली जीरो जीरो बोलो एंट्री है ना। तो क्या करेंगे, 1 1 2, नहीं सॉरी, यस 0 0 1 2 एज इट इज। क्या करना है हमें, R1 में सर R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 0 दिस, 1 माइनस 1 0, एंड 2 माइनस ये जीरो है सर, ये क्या था, 0 1 0 है सर। हाँ, तो हमने R1 माइनस R2 किया, 1 माइनस 0 1 माइनस 0 2 माइनस 0 2, है ना। अब ये रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म हो गई, देखिए, है ना। तो हाउ मेनी नॉन जीरो रोज, 2, तो रैंक ऑफ ए इज सर, हाउ मच, 2, 2 सर, है ना, क्योंकि 2 नॉन जीरो रोज है, इट इज नाउ रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। देयर इज नो जीरो रो, अगर जीरो रो होती तो नीचे आती है ना। 1 इज द फर्स्ट यस नॉन जीरो एंट्री एंड इट इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। ये रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म की कंडीशन थी, है ना। क्या थी, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री शुड बी यूनिटी, it should be the non-zero entry in its column. If there are zero यस rows, it should come in the bottom, और zero should be in the decreasing। तो ये आपका आ गया, तो रैंक 2 आ गई, देखिए। तो रैंक ए 2 इज इक्वल टू m बट लेस देन n, है ना, n से लेस है। तो इस केस में क्या लिखा हमने, कि अगर ऐसा केस है तो इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, कैसे आएंगे, देखिए। यहाँ पे आपको एक फ्री वेरिएबल मिलेगा, फ्री वेरिएबल क्या, कितने मिलते हैं, n माइनस m, 3 माइनस 2 1, यानी कि एक वेरिएबल फ्री वेरिएबल होगा। उस फ्री वेरिएबल की वजह से क्या होगा आपके पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनफाइनाइट, जाएंगे, क्योंकि फ्री वेरिएबल को आप कुछ भी चॉइस दे सकते हैं। यस सर, देखो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बताओ जरा, सॉल्व करो, देखो इसे ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके अगर हम यस सॉल्व सर। करें, है ना, यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन अपना। एक्स और वाई को जेड में लिखना पड़ेगा, मतलब हाँ, यस सर। तो ये है, और एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस वाई प्लस, ये इक्वेशन ली थी मैंने, आर्बिट्रेरी मैंने ऐसे ही लिख दिया था कुछ भी। अब एक्स और आप वाई अगर इसे प्लस सॉल्व करेंगे, देखिए, तो टू फर्स्ट टू एक्स एज इट इज, मल्टीप्लाई, फर्स्ट टू एज इट इज, नीचे वाली हमने ट्वाइस करके सब्ट्रैक्ट किया, तो आपको इक्वेशन यस क्या सर। मिलेगी, एक्स 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2y, 2y माइनस 2 वाई माइनस वाई, और ये, 4, तो ये आएगा y इज इक्वल टू, है ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा, देखिए। यस सर। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज 0, y 0 आपने यहाँ रखा, तो क्या आ गया, 2 अब एक्स क्या प्लस आएगा, 4 जेड इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2z। तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा क्या होगा, जेड में सॉल्यूशन आएगा। सेट आपके पास जो आएगा वो ये होगा, x अगर आपके पास माइनस 2z है, या z ले लें आप यस सर। माइनस एक्स बाई 2, तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, x कॉमा 0 कॉमा माइनस एक्स बाई 2, फिर x बिलोंग्स टू कुछ रियल, है ना, क्योंकि x को मैं फाइंड नहीं कर सकता। तो कितने सॉल्यूशन है ये आपके पास, इनफाइनाइट, क्योंकि x की यू हैव इनफाइनाइट चॉइसेस, है ना। देखो भाई y तो 0 है, अब अगर x में 1 ले लूं तो z इज हाउ मच, x अगर 1 ले लें तो z इज माइनस 1 बाई, हेलो, यस सर। हाँ नेट डिस्कनेक्ट हो गया यार, वही डिपार्टमेंट की नेट से पढ़ा रहा हूँ ना, तो चलिए, अब वो शायद वो रिकॉर्डिंग वहाँ वो एंड हो गई होगी, वहाँ से स्लाइड, न्यू स्लाइड खोलनी पड़ेगी मुझे, क्या चल रही है देखें। चलिए मैं दोबारा फाइल ओपन करता हूँ। वो फाइल आपकी वहीं से, व्हाइट बोर्ड इज विजिबल, यस सर। हाँ। तो वी आर टॉकिंग अबाउट डेट सिस्टम, तो उसमें कितना है आपके पास, देखिए एक फ्री वेरिएबल आ रहा था वहाँ पे, है ना, रिकॉर्ड माइनस में इसका लगाया मतलब था, यस सर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो व्हेन यू हैव r इज इक्वल टू m इज इक्वल टू is equal लेस less देन than equal to n, 10 then nh इनफाइनाइट सॉल्यूशन और as well as h, they have इनफाइनाइट infinite सॉल्यूशन। choice, है ना? They have infinite। तो मैंने आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दिया है, 2 3 वेरिएबल लेके।
ऐसे ही इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं इफ यू हैव सो मेनी वेरिएबल्स एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, एग्जाम्पल है 5.23 पेज 198। कंसीडर द सिस्टम, एक सिस्टम आपको सॉल्व करना है। 2x1 प्लस x3 माइनस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 2, x1 प्लस x3 minus x4 plus x5 is 1, and 12x1 plus 2x2 plus 8x3 plus 2x5 is equal to 2. ये सिस्टम इक्वेशन में सॉल्व करके बताना whether it has a solution or not, and if it has solution so it is unique or infinite many whatever is this, है ना। तो firstly I will see कि whether it has solution or not, तो उसके लिए I will construct an augmented matrix, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लेंगे, साथ में ऑगमेंटेड एक साथ बना सकते हैं, यू नो। तो आई विल टेक इन फैक्ट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा आपका, यू नो, a कॉमा b, एंड आई विल टेक 2। अब देखो यहाँ पे x2 नहीं है तो इसका मतलब x2 कोएफिशिएंट क्या है, 0 है ना। 2 0 1 और -1 1, है ना। ये आपके पास क्या हो गई कोएफिशिएंट, और ऑगमेंटेड में एक मैंने डॉट डॉट करके, क्योंकि 6 कॉलम इज दिस 1 ये तो ये x2 मिसिंग है, वो भी उसका है। हाँ, x2 मिसिंग है तो x2 का कोएफिशिएंट क्या है, 0, क्योंकि ये आपके पास क्या होते हैं एक्चुअली, दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स तो 5 है ना, x1 x2, तो x2 का कोएफिशिएंट 0 है यहाँ पे। सिमिलरली हियर, and last is 12 2 8 0 0 2 2 12. So it is your augmented matrix, है ना। 3 rows इसमें and including augment 6 columns. So now I want to find, what is the rank of the coefficient matrix। यहाँ तक अगर मैं लूंगा तो ये coefficient matrix है, और ये लूंगा तो ये augmented matrix हो गई। तो I will find rank of this। तो रैंक के लिए as usual I will try to reduce it into row reduce equivalent form, है ना। तो यहाँ पर आपके पास 2 है, क्या करेंगे हम, यहाँ पे शिफ्ट कर दें आप, तो या डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो आप चाहे तो। R1 में R1 माइनस पहले शिफ्ट कर दिए आप, या तो पहले तो रिप्लेस कर लो R1 और R2 को, ठीक है, और फिर R2 माइनस 2R1, ये तो करेंगे, है ना। तो ये ऑल दीज थिंग यू कैन डू नाउ। आई एम स्किपिंग दीज स्टेप्स, यू नो हाउ टू रिड्यूस इट, है ना। 1 बनाते रहिए, बाकी सब कुछ 0। तो आफ्टर सॉल्विंग द फाइनल मैट्रिक्स इट विल बी कमिंग दिस 1 0 0 0 0 1 and 0 1 0 4 minus 3 0 0 0 1 minus 1 1 0। ये देखिए ये आपकी रिड्यूस फॉर्म हो गई। नाउ हियर यू कैन सी कि रैंक ऑफ ए इज हाउ मच, 3, और रैंक ऑफ ए बी के लिए क्या करना है हमें, कि इसको भी, अभी जब मैं ए की बात कर रहा हूँ तो आई विल सी ओनली दिस, ये 3 है क्योंकि 3 नॉन जीरो रोज है। अब मैं अगर ए बी लूंगा तो आई विल ऐड दिस आल्सो, और इसे भी हमने ऐड करा तो क्या है, देखिए अब भी आपके पास 3 नॉन जीरो रोज है ना, फॉर दिस मैट्रिक्स आल्सो। तो बोथ द केस में रैंक इज हाउ मच, 3, है ना। तो इट मींस दिस इंप्लाइज दैट, लेकिन एन हमारे पास क्या थे, 5 थे, और एम 3। तो रैंक तो इक्वल आई है, लेकिन इसका मतलब इससे तो ये पता चल गया कि सिस्टम है सॉल्यूशन, क्योंकि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, बट इट इज लेस देन 5। सो इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसके, है ना। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो जो लास्ट मैट्रिक्स आई है यहीं पर हम वैल्यू रख देते हैं। इसका तरीका क्या होता है, जो लास्ट मैट्रिक्स सॉल्व होके आई ना, यहीं पर वापस हम
x1 x2 x3 x4 x5 ये सब कोफिशिएंट है, वापस वैल्यू पुट कर दो। तो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या थी, x1, बाकी सब जीरो है, तो x1 इज इक्वल टू 1। सेकेंड क्या है, 0 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 और प्लस 0 इंटू x3 प्लस 4 इंटू x4 माइनस 3x5 इज इक्वल टू 0। और लास्ट मैट्रिक्स में थी 0, ये 0 x1 का कोफिशिएंट है ना, तो 0 इंटू x1 Yes, sir. 0 इंटू x2 x3 माइनस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है अब। तो ये जो पूरा सिस्टम था, इसकी जगह यू कैन सॉल्व दिस एक ही बार। तो x1 तो 1 ऑलरेडी है ही आपके पास, है ना। Yes, sir. यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू कैन सी x3 विल बी हाउ मच। अब एज आई टोल्ड यू 5 अननोन्स है और 3 रैंक है, तो 5 माइनस 3 एंड माइनस m, 2 फ्री वेरिएबल्स मिलेंगे आपको। Oh, free variables. Yes, sir. 2 फ्री वेरिएबल्स। तो देखिए x3 की वैल्यू क्या आ रही है, x4 माइनस x5 और x2 इज हाउ मच, माइनस 4x4 प्लस 3x5। तो इसका क्या हुआ, यू हैव टू चॉइस, x4 x5 की चॉइस आपके पास है, यू हैव फ्री चॉइस, है ना। अगर मैं x4 x5 को फॉर इन पर्टिकुलर, अगर x4 x5 को मैं 0 ले लूं तो x3 0, है ना, Yes, sir. और x2 भी 0 ही x2 है। तो यू हैव सॉल्यूशन सेट क्या है आपका। सो अगर सॉल्यूशन सेट आप लिखेंगे तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, देखिए 1 Problem set. माइनस This is 4x4 प्लस 3x5 X3, x4 माइनस x5 x4 x5 X5. where x4 and x5 they are Are some real numbers। तो ये Yes, sir. आपके पास सॉल्यूशन सेट बनेगा इसका, ठीक है। यहाँ इतना आप इसे लिख के छोड़ सकते हैं, दिस इज द इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक। Yes. तो here in this way you can solve it। ऐसे ही एक और प्रॉब्लम है 5.24 पेज 199 पर। इसमें आपको एक सिस्टम इक्वेशन गिवन है, x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 4, 2x1 माइनस x3 माइनस 3x4 इज इक्वल टू 4, x1 माइनस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, 3x1 माइनस x2 माइनस x3 माइनस 5x4 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर अगर आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, इट विल बी 1 2 4 और 1 4 2 0 माइनस 1 माइनस 3 4 1 माइनस 2 माइनस 1 0 0 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 5 5, ठीक है। Is a तीसरी equation max1 minus 2x2 है sir. x1 माइनस 2x2, अच्छा तो यहाँ 2x2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, हाँ ये ठीक है, ये x2 था, ठीक है। अब देखिए इट Yes, इज sir. योर मैट्रिक्स। Augmented नाउ आई विल अप्लाई रो रिड्यूस इक्विलिब्रियम फॉर्म। तो फाइनल आफ्टर अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस इट विल रिड्यूस टू 1 0 0 माइनस 1 2। ये सॉल्व प्रॉब्लम है तो मैं बुक से डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना, क्योंकि आप उसे चेक कर सकते हैं हाउ इट विल बी कमिंग। 0 0 1 1 0। वी हैव ऑलरेडी डन सेवरल प्रॉब्लम्स, नो नीड टू डू अगेन इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इज इट ओके, है ना। Yes, sir. ये कैसे आएगी, आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशन। सो दिस इज योर रो रिड्यूस फॉर्म, this is row reduced echelon form. So here if you see what is the rank of A, ये A है आपका including this B है, so what is the rank of A, 3 sir. 3 है, and what is rank of A comma B, 4. क्योंकि जब आप इसे भी इंक्लूड करेंगे तो ये आपका नॉन जीरो है ना, तो रैंक कितनी हो गई 4, so it is not equal, is not equal to
rank of A, B. So it implies that system has no solution, है ना? Yes sir. और वैसे भी आप देखिए, यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं लास्ट रो में वैल्यू पुट करूंगा तो 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2, लास्ट रो क्या है? 0x1 0x2 0x3 0x4 इज इक्वल टू 0 8/7. 8/7. इज इट पॉसिबल 0 इज इक्वल टू दिस? ये तो सब 0 था, देखिए, है ना? No, ये पॉसिबल नहीं है. तो यही इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है क्या? यू विल बी गेटिंग सम एब्सर्ड रिजल्ट. इट इज एब्सर्ड रिजल्ट, इट कैन नॉट बी, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना? यू कैन सी. Yes. So this implies that no solution, inconsistent. Okay, so rank, because rank is not equal. तो यहाँ से प्रॉब्लम से आप 5.8 इसी पे भेज दे पूरी. इस पे यू विल डू प्रॉब्लम नंबर 1 में A, C और H 3 आप होम असाइनमेंट करें. ओके. Yes sir. मैट्रिक्स इन्वर्जन भी हम निकाल सकते हैं इस फॉर्म से. मैट्रिक्स इन्वर्जन देखिए, अगर आपके पास AX इज इक्वल टू B है सपोज, है ना, और A नॉन Yes, sir. सिंगुलर है. A अगर नॉन सिंगुलर है तो नॉन सिंगुलर Yes, का sir. मतलब क्या हुआ? A इनवर्स Determinant. एग्जिस्ट. Exist. तो मैं A इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. A इनवर्स AX इज इक्वल टू A इनवर्स B. AX इज इक्वल टू B क्या है आपके पास? जो सिस्टम इक्वेशन अभी हम लिख रहे थे वही है actually. अब A Yes, इनवर्स sir. by the associativity I can write this. Yes, sir. अब A इनवर्स A क्या आएगा आपके पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना? Yes, sir. आइडेंटिटी मैट्रिक्स A इनवर्स B. ये मान लो n है, अगर A n क्रॉस n के हैं, अगर A मैं ले रहा हूँ n क्रॉस n की मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी इनटू x x, तो दिस मींस x इज इक्वल टू, यहाँ x A रियल inverse. नंबर नहीं है, देखो x यहाँ पर क्या है आपके पास? रो वेक्टर है ध्यान रखो. Yes, तो sir. ये x आपके पास वैल्यू दे देगा A इनवर्स B. तो x क्या है आपके पास? x वही है, x1 Fundamental. x2 xn, है ना? तो इससे भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं बाय सॉल्विंग दिस. आपको मैट्रिक्स का इनवर्स लिखना पड़ेगा बस. अब इनवर्स निकालने के डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक? Yes, sir. In this way you can also solve AX is equal to B. So it was all about this matrix and this. Next, last topic we have eigenvalues, which is your chapter 6 actually. So whole chapter 6 is not there. इसमें सिर्फ 6.8 है आपका eigenvalues and eigenvectors. It is also very important topic and it has various applications, these eigenvalues. As I told you, in machine learning you will see this has applications, eigenvalues. So eigenvalues basically क्या है ना? Before that you know, first thing you have to understand what some properties of determinant you should know. Suppose you want to find determinant. Determinant हमेशा किस मैट्रिक्स की फाइंड होती है? यू नो, स्क्वायर मैट्रिक्स, Square. है ना? इफ ए इज Yes, sir. स्क्वायर मैट्रिक्स तभी हम डिटरमिनेंट की बात करते हैं. इट इज वेरी कॉमन थिंग. इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब N इसका, row, N column. हाँ, रो और कॉलम सेम होना चाहिए, तो इसका हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं. तो इफ डिटरमिनेंट ए इज 0, देन क्या होता है? देन ए हैज रैंक लेस देन n. तो उस केस में रैंक क्या होगी? n से कम आएगी. जैसा भी आपने पीछे देखा था, मैंने रैंक निकाला यहाँ पे, एक मैट्रिक्स सॉल्व करी थी 2x2 की. अच्छा वो स्लाइड चली, है ना? तो डिटरमिनेंट ए अगर हम निकालें और अगर वो 0 आ जाता है तो उसकी ए की रैंक लेस देन n होती है मैट्रिक्स की. ठीक है, ये डिटरमिनेंट का तरीका होता है रैंक निकालने का. आपको मैट्रिक्स दे रखी है, उसकी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है, आप डिटरमिनेंट निकालेंगे. अगर डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो आया तो जिस ऑर्डर का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है वही उसकी रैंक हो जाती है. ठीक है, तो अगर 3/3 का है, कोई भी 3/3 का है मान लो, जैसे मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूं, तो आपको मालूम है
इसका अगर ये i है तो डिटरमिनेंट कितना आएगा इसका? प्लस 1 आता है, यस सर। वही आ जाएगा, विच इज नॉन जीरो। तो i की रैंक क्या होती है? हमेशा 3 होती है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रैंक 3 by 3 के लिए 3 आ जाती है। अगर ये 0 नहीं आया, अगर ये 0 आ जाता तो फिर हम क्या करते? फिर हम 2 by 2 के चेक करते, रैंडमली लेके कोई से भी, फर्स्ट 2 या सेकंड और थर्ड फॉर्म लेके। अगर वो आपका नॉन जीरो आएगा तो वो रैंक हो जाएगी। ओके, तो डिटरमिनेंट ए 0 है तो ए की रैंक लेस देन n आती है। जैसे यहाँ पर डिटरमिनेंट ए आपका 0 नहीं आया तो रैंक क्या आ गई? n ही आ गई, 3। लेकिन अगर ऐसा होता 0 आ जाती तो रैंक फिर हम कुछ और चेक करते। तो उस केस में क्या होता है? रैंक अगर लेस देन n आई तो क्या होगा? तो जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा ax इज इक्वल टू 0 होमोजीनियस, देन इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसके पास एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पर रैंक हम देखें अगर 0 है ना। यहाँ देखो देखो, यहाँ मैट्रिक्स क्या बनी? 1 1 2 3। डिटरमिनेंट बनाओ जरा, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या आएगा इसका? 1 नॉन जीरो। तो नॉन जीरो में तो क्या बताया अभी मैंने कि सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 0 0 यस सर। है ना। अब यहाँ पे ही मैं दूसरा सिस्टम ले रहा हूँ, लो x प्लस वाई 0, 2x प्लस 2y 0, ये सिस्टम लिया। यहाँ पर मैट्रिक्स क्या बनेगी आपकी, बताइए जरा। 1 1 2 2। 1 1 2 2 डिटरमिनेंट बताओ क्या आएगा इसका? 0 0 आ गया। अब अगर डिटरमिनेंट 0 है तो क्या कह रहे हैं कि अगर डिटरमिनेंट 0 है तो सिस्टम की रैंक क्या है? लेस देन n होगी। देखो इसको अगर आप इकोलॉन फॉर्म में चेंज करो जरा, क्या आएगा? 1 1 और ट्वाइस, ये इकोलॉन फॉर्म हो गई आपकी, है ना। कितनी नॉन जीरो रोज? हाउ मेनी नॉन जीरो रोज? ओनली 1। एक तो यहाँ पर रैंक कितनी है आपके पास? 1 तो रैंक क्या है? लेस देन n हो गई, है ना। तो ये कह रहे हैं डिटरमिनेंट ए 0 है तो ए की रैंक क्या होगी? लेस देन n होगी, क्योंकि n 2 था। और सिस्टम क्या रखेगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब सिस्टम रूल क्या था आपके पास? x प्लस y इक्वल y इज इक्वल टू 0। इसे आप इक्वल सॉल्व 0 करेंगे तो क्या है ये? इनफैक्ट ये एक ही इक्वेशन तो है। अरे मल्टीप्लाई तो किया है। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू माइनस y तो कैसा सॉल्यूशन है ये? नॉन ट्रिवियल। सिर्फ 0 को ही है। अगर मैं y-1 ले लूं, x1 ले लूं, ये भी सॉल्यूशन है इसका, है ना। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सिर्फ 0 आ रहा होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉन ट्रिवियल। तो अगर रैंक आपकी लेस देन n है, यानी कि डिटरमिनेंट a अगर आपका 0 है, तो 0 नहीं ले सकते, x है इक्वल टू 0 y भी तो 0 0 भी है। ले सकते हैं, लेकिन नॉन ट्रिवियल एग्जिस्ट कर रहा है ना।